नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यां नमो लोये सौज्यायां नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारबिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् यो मङ्गलं भूतमोनि मङ्गलं कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા અને જયસેનાચાર્ય ભગવાનની ટીકા તાત્પર્ય વૃત્તિ એનો સ્વાધ્યાય આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચન દ્વારા કરી રહ્યા છીએ. એમાં ચરણાનુયોગ સૂચક ચુલિકા ત્રીજો અધિકાર એનો બીજો પેટા ભાગ મોક્ષ માર્ગ પ્રજ્ઞાપન એની ગાથા 239 નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. આચાર્ય ભગવાનની આ ગાથા એનો અનુવાદ ટીકા ભાવાર્થ અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો ઘણો ભાગ આપણે કર્યો છે. શેષ ભાગ આજે લઈએ છીએ અને તે પછીથી આજે આપણે ગાથા 240 નો સ્વાધ્યાય કરવાના છીએ. એટલે પહેલા 240મી ગાથા આપણે વાંચનમાં લઈએ છીએ. 240મી ગાથા ના ઉબોધઘાતમાં કહે છે કે હવે આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન સંયતત્વના યુગપદપણાનું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સાધે છે. એટલે આ ત્રણના યુગપદપણાની વાત તો અગાઉની ગાથામાં આવી ગઈ કે આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન અને સંયતત્વ એનું યુગપદપણું, અને પછી એ વાત 239માં કરવામાં આવી કે આત્મજ્ઞાન વિના એ સિદ્ધિ થતી નથી. એટલે એ આત્મજ્ઞાન જે અનુભૂતિપૂર્વક છે તે તો હવે અહીંયા એમ કે છે 240ની અંદર કે એ ત્રણનું યુગપદપણું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સાધે છે. અર્થાત આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન અને સંયત્વ એ ત્રિકની સાથે ત્રણની સાથે આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સાધે છે. 240ની ગાથા સંસ્કૃતમાં આ રીતે છે. પંચ સમિતિ ત્રિગુપ્ત પંચેન્દ્રિય સંવૃતો જીત કષાય દર્શન જ્ઞાન સમગ્ર શ્રવણ સસંયતો ભણિત. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. જે પંચ સમિતિ ત્રિગુપ્ત ઇન્દ્રિય નિરોધી વિજયી કષાયનો પરિપૂર્ણ દર્શન જ્ઞાનથી તે શ્રવણને સંયત કહ્યો. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે પંચ સમિતિ પંચેન્દ્રિય સંવૃત ત્રિગુપ્ત જીત કષાય, પાંચ સમિતિ યુક્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના સંવરવાળો ત્રણ ગુપ્તિ સહિત જીત કષાય અને દર્શન જ્ઞાન સમગ્ર દર્શન જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ શ્રમણ સંયત ભણિત એવો જે શ્રમણ તેને સંયત કહ્યો છે. પાંચ સમિતિ યુક્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના સંવરવાળો એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયોને જીતી હોય એવો, ત્રણ ગુપ્તિ સહિત મન વચન અને કાયાની ગુપ્તિ, જીત કષાય કષાયોને જેણે જીતી લીધા છે તે, અને દર્શન જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ એવો જે શ્રમણ તેને સંયત કહ્યો છે. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન સમજાવે છે કે જે પુરુષ અનેકાંત કેતન એટલે કે અનેકાંતમય, જે પુરુષ અનેકાંત કેતન આગમ જ્ઞાનના બળથી સકળ પદાર્થોના જ્ઞેય આકારો સાથે મિલિત થતું વિશદ એક જ્ઞાન જેનો આકાર છે એવા આત્માને શ્રદ્ધતો અને અનુભવતો થકો. જે પુરુષ આગમ જ્ઞાનના બળથી
આત્માને શ્રદ્ધો અને અનુભવતો થકો. તો આત્માને શ્રદ્ધો અને અનુભવતો થકો કયો? તો એમાં એમ કહ્યું કે એ જ્ઞાન જેનો આકાર છે. કેવું જ્ઞાન જેનો આકાર છે? તો એમાં એમ કહ્યું કે સકળ પદાર્થોના જ્ઞેય આકારો સાથે મિલિત થતું વિશદ એક જ્ઞાન જેનો આકાર છે એવો આત્મા. તો એવા આત્માને શ્રદ્ધો અને અનુભવતો થકો જે પુરુષ. અને એ કઈ રીતે? તો કે અનેકાંત ચેતન આગમ જ્ઞાનના બળથી એવો એ પુરુષ આત્મામાં જ નિત્ય નિશ્ચળ વૃત્તિને ઈચ્છતો થકો. આત્મામાં જ હંમેશા નિશ્ચળ, ચળે નહીં તેવી વૃત્તિને ઈચ્છતો થકો. સંયમના સાધન રૂપ બનાવેલા શરીર પાત્રને, શરીર એ સંયમનું સાધન છે, સંયમના સાધન રૂપ બનાવેલા શરીર પાત્રને 5 સમિતિથી અંકુશિત પ્રવૃત્તિ વડે પ્રવર્તાવતો. 5 સમિતિ પૂર્વક જેનું જીવન છે, એટલે એ શરીર ત્યારે એ ખરેખર એની સાધનાનું સાધન થાય છે. 5 સમિતિથી અંકુશિત પ્રવૃત્તિ વડે પ્રવર્તાવતો. અને આગળ કહે છે કે ક્રમશઃ 5 ઇન્દ્રિયોના નિશ્ચળ નિરોધ દ્વારા જેને કાય વચન મનનો વ્યાપાર વિરામ પામ્યો છે એવો થઈને 5 ઇન્દ્રિયોનો જેને નિરોધ, એટલે હવે એના વિષયો પ્રત્યે એને કોઈ વિકલ્પ ઉઠતો નથી. તો કે 5 ઇન્દ્રિયોના નિશ્ચળ નિરોધ દ્વારા જેને કાય વચન અને મનનો વ્યાપાર વિરામ પામ્યો છે, હવે મન વચન કાયાની એ રીતે એને પ્રવૃત્તિ થતી નથી એવો થઈને ચિદ્વૃત્તિને પરદ્રવ્યમાં ભ્રમણનું નિમિત્ત જે કષાય સમૂહ, તે કષાય સમૂહ આત્માની સાથે અન્યોન્ય મિલનને લીધે અત્યંત એકરૂપ થઈ ગયો હોવા છતાં પણ સ્વભાવ ભેદને લીધે તેને પરપણે નક્કી કરીને, એ કષાય સમૂહને પરપણે નક્કી કરે છે સ્વભાવ ભેદ દ્વારા. પોતાનો સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ જુદો છે અને આ કષાયોનો સ્વભાવ જુદો છે, એમ એ પોતાના સ્વભાવથી કષાયને જુદો પાડે છે. એમ નક્કી કરીને આત્માથી જ તેને કુશળ મલ્લની માફક અત્યંત મર્દન કરીને અક્રમે મારી નાખે છે, કષાયોને મારી નાખે છે. કેવી રીતે મારી નાખે છે? કે પેલો મલ્લ જે હોય, જે એ અત્યંત દમીને કચરીને દબાવીને જેમ હરીફને મારે છે, તેવી રીતે આ એ કષાયને મારી નાખે છે. એમ કે છે કે કરીને અક્રમે મારી નાખે છે. તે પુરુષ ખરેખર સકળ પરદ્રવ્યથી શૂન્ય હોવા છતાં વિશુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન માત્ર સ્વભાવ રૂપે રહેલા આત્મતત્વમાં, સ્વદ્રવ્યમાં નિત્ય નિશ્ચળ પરિણતિ ઉપજી હોવાથી સાક્ષાત સંયત જ છે. અને વિશુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન માત્ર સ્વભાવ રૂપે રહેલા આત્માના તત્વમાં, સ્વભાવમાં નિત્ય નિશ્ચળ પરિણતિ ઉપજી હોવાથી સાક્ષાત સંયત જ છે. આત્માનો સ્વભાવ જ વિશુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન માત્ર છે અને તેને જ આગમ જ્ઞાન, તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન, સંયતત્વના યુગપદપણાનું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સિદ્ધ થાય છે. આવી રીતે જેનું પ્રવર્તન થાય છે, જે પુરુષનું, જે જીવનું, એને ખરેખર આ આગમ જ્ઞાન, તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન, સંયતત્વ એ 3 યુગપદપણું અને એની સાથે આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સિદ્ધ થાય છે. એને એ આત્મજ્ઞાન પણ સાથે છે એ વાત કરી. એટલે સમિતિપૂર્વકનું એનું જીવન છે એટલું જ નથી, પણ એની સાથે આ બીજી બધી વસ્તુ લઈ અને સમજાવવામાં આવ્યું કે એનો સ્વભાવ અને કષાયનો સ્વભાવ જે છે એનો તદ્દન ભેદ કરી અને કષાયથી એ પોતે રહિત થઈ જાય છે. સમિતિ ઉપરાંત એ વાત પણ લીધી. અને એમ જ્યારે એનું પ્રવર્તન થાય છે તો ખરેખર એને આત્મજ્ઞાન છે. આગમ જ્ઞાનની સાથે, તત્વાર્થ શ્રદ્ધાની સાથે અને એવું સંયમ, એ બધાની સાથે એને આત્મજ્ઞાન છે. એ ત્રણેય સાથે એને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સિદ્ધ થાય છે. તો આ રીતે 240મી ગાથા છે.
એનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીશું. અત્યારે 239મી ગાથાનો જે શેષ ભાગ છે તે આપણે લઈએ છીએ. તો સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય. મૂળ ગાથામાં એ વાત કરી કે જો દેહ આદિક પ્રત્યે પરમાણુ જેટલી પણ મૂર્છા એટલે એટલો મોહ વર્તતો હોય તો એ ભલે સર્વ આગમ ધરનારો હોય તો પણ સિદ્ધિ પામતો નથી. આગમધર હોય એટલે કે આગમના સારને એને પ્રાપ્ત કર્યો હોય, બધું હોય, આગમ જ્ઞાન, તત્વાર્થ, શ્રદ્ધાન, સંયમ, યુક્તપણું પણ હોય, એ બધું હોય, પણ સહેજ પણ જો એનો મોહ છે તો એ મોહરૂપી મળ એ કલંક છે અને એના કારણે એ બંધાયેલો, એ કર્મોથી જે બંધાયેલો છે એનાથી છૂટો થતો નથી, જરાક પણ મૂળ રહે છે. તો અને એમાં એટલે એ રીતે વાત કરવામાં આવી કે પરમાણુ જેટલી પણ મૂર્છા વર્તતી હોય, સહેજ પણ મોહ વર્તતો હોય તો એમ થતું નથી. તો આપણે 239મી ગાથા પર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કરે છે તેનો આગળનો ભાગ લઈએ છીએ. પ્રવચન સિદ્ધિ ભાગ 10મો, એના પાના નંબર 152 પર ચોથો પેરેગ્રાફ गुरुदेव यहाँ कहे छे कि यहाँ तो अभी अज्ञानी ऐसा मानते हैं, यहाँ तो अभी शरीर की क्रिया से मुझे लाभ होगा, यहाँ यानी अनादि जी मान्यता में ऐसा है एम करी અને વાત આગળ સમજાવે છે. મૂળ વાત કરતા હતા એ કે મુનિને થોડો રાગ હોય તો પણ એ રાગ જે છે એ પણ એક કલંક સમાન છે એમ કરીને વાત કરી. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કરું वहां मुनि को तो थोड़ा राग है, शरीर के प्रति का लक्ष्य है, ऐसा संयम हो, इतना राग होता है, इतने कलंक को बंध के कारण कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता, उसको मोक्ष नहीं होगा. आ बात करी અને પછી કહે છે कि यहाँ तो अभी शरीर की क्रिया से मुझे लाभ होगा ऐसा मानते हैं. પેલામાં તો એમ કહ્યું કે મુનિને તો શરીરનું જ જરાક લક્ષ થાય એટલો રાગ, એટલો મોહ હોય તો પણ એ છૂટતા નથી, એટલે કે મુક્તિને પામતા નથી. એટલે એ રીતે વાત આગળ સમજાવે છે. અહીં તો હજી શરીરની ક્રિયા से मेरे लाभ होगा. हाँ એટલે અનાદિ की मानता में ठीक. मैंने शुभ राग आया देवगुरु शास्त्र की भक्ति का, बस उसमें भी कुछ संवर निद्रा है, धूड़ में ही नहीं है. सुन तो सही, समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की भक्ति का राग आते हैं, संवर निद्रा नहीं, उससे धर्म नहीं, उससे अंतर्मुख होने की राग में ताकत नहीं. समझ में आया? ऐसा मोक्ष मार्ग जो राग से निरपेक्ष होकर अपना स्वभाव की अपेक्षा करके आत्मज्ञान में अनुभव अंतर में नहीं करते हैं, तो इतना राग मात्र से भी पुण्य बंद होता है, पण कर्म से छुटकारा होता नहीं. वो राग तो इसे किया ने पासा इतना राग मोहमल कर्म किले के साथ एम कहूं भाई, कर्म ने कारण राग ऐसी शब्द नहीं है यहाँ, कलंक रूप किले एम लिया है. अपना दोष के कारण जो राग आया, भले पंच महाव्रत का परिणाम, 28 मूल गुण का परिणाम ये राग का किला है, मोहमल कलंक है. मुनि 28 मूल गुण सच्चा मुनि भावलिंगी हो और 28 मूल गुण में आया तो कहते मोह मल कलंक है. इतना समझ में आया? इतने मात्र से मोक्ष नहीं होगा है, मुनि दशा. मोहमल कलंक रूप किले के बंधे हुए कर्मों से न छूटता होगा, नहीं सिद्ध होता. समझ में आया?
उसकी मुक्ति होगी नहीं। मुक्त स्वभाव तो स्वभाव की एकता से होता है। क्या उसमें राग आया और निमित्त की अपेक्षा रहा, उससे क्या मोक्ष होता है? समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा पहली श्रद्धा में ऐसी निर्मलता स्वभाव सम्मुख होकर ऐसी होनी चाहिए कि राग मात्र से अपने में कोई लाभ होगा नहीं, और शुभ से तो नहीं, पर शुभ से भी व्यवहार रत्नत्रय पर बंध का ही कारण है। जिसको व्यवहार रत्नत्रय कहना, जिसको मोक्ष मार्ग कहना, वो ही बंध का ही कारण। वस्तु तो ऐसी है, माने न माने वो तो उसकी स्वतंत्रता है। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आत्मज्ञान शून्य का अर्थ आत्मा में एकता की स्थिरता बिना, आज्ञम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयत्व की युगपता भी अकिंचित करी है। आ शब्द ऐसा कड़क कटक पड़े ने, अकिंचित कर। राग तो अकिंचित कर है ही। आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण में राग जो शुभ राग है तो अकिंचित कर है ही, कहीं करते नहीं आत्मा का लाभ राग। पर यहाँ तो कहते कि आज्ञम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत, आज्ञम એટલે શાસ્ત્રના એકલાની અંદર आज्ञम ज्ञान कहा ने पहले भाव ज्ञान, ऐसा जानने वाला मैं ऐसा ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन सच्चा हुआ, संयतपणा भी आया, बाई में नग्न दशा है। वो घर में रहकर ऐसी दशा होती नहीं। मोतीलाल जी, घर में रहकर कहते हैं ना कि भाई घर में रह, पर भी वो क्या नड़ते हैं पीछे व्यवहार, निश्चय हुआ पीछे व्यवहार क्या नड़ते हैं? कौन कहते हैं नड़ते हैं? नड़ते क्या कहते हैं समझे? बाधा कर सकते हैं शरीर, वो तो है बाधा नहीं, पर उस तरफ का लक्ष्य है तो शरीर की नग्न दशा नहीं हुई है, न हुई है उसके कारण से। पर जितना राग है इतना नग्न दशा न रही, वस्त्र सहित हुआ, वो राग का निमित्त है उसमें। तो ऐसा राग भी दृष्टि में से छूट गया कि पर के कारण से नग्न दशा से मेरे में लाभ होगा, वो तो है ही नहीं। छता नग्न दशा है, संयत्व है, सम्यक दर्शन ज्ञान है, जरी इतना विकल्प रह गया शरीर सन्मुख का प्रमाद भाव, वो शुभ भाव भी प्रमाद है। व्यवहार रत्नत्रय का राग भी प्रमाद है। ये समझ में आया? तो व्यवहार की निरपेक्ष अपेक्षा छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान अनुभव करते हैं, उसको मोक्ष मार्ग होता है, दूसरा को होता। युगपत भी अखिंचित करिए, इसलिए पछी थोड़ो મને એમ निकालू कि भाई ત્રણ व्यवहार હોય, नाम निक्षेप है, એમ निकाली છે। એને सम्यक દર્શનની પ્રધાનતાની વાત કરી ત્રણ ઠેકાણ કે आज्ञम ज्ञान कયું છે ने प्रश्न उठायो છે भाई। तो प्रवचन सारमा आज्ञम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत कયું છે અને संयत कहा है। तो भैया नाम निक्षेप से आज्ञम ज्ञान उसकी बात कहते हैं। वो क्या तीन बोल नाम निक्षेप से कहा, ऐसा उसमें सम्यक दर्शन प्रधान की बात करते हैं। नहीं चालती आते हैं तो समय एक एक गाथा चढ़ती है, तो वो आज्ञम ज्ञान या नाम निक्षेप है तो है नहीं, है तो भाव निक्षेप है। सात्मा ने लायक नहीं माचे उसका भाव निक्षेप होते छते। भाव निक्षेप समझते हैं कि नहीं? भाव रूप सम्यक ज्ञान दर्शन संयत है। भाव भाषण पूर्वक भाव प्रगट्या है, पण सप्तम गुण स्थान योग जो दशा जो ये थी नहीं 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 नहीं, शुद्ध उपयोग की एकता बिना मोक्ष मार्ग नहीं। और छठा गुण स्थान के योग भी यहाँ अकिंचित कर है, और निर्मल तीनों पर्याय भी अकिंचित कर
મોક્ષ માટે કાંઈ કરતું નથી, જરીએ કરતું નથી, और नाम नहीं किंचित कार्य करतो નથી। समझ में आया है? वो वस्तु का स्वरूप लीनता भी बिना धारा कहां से चढ़ेगा? और तो विकल्प है, प्रमाद है, ऐसा चलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा कहूं, वो भी सब राग है। शास्त्र रचूं, इतना भी संग प्रति प्रेम है कि संग नहीं इतना हो तो ठीक, वो भी राग है शास्त्र रचने का। ये शास्त्र रचने का भाव भी राग है, सेठ, राग शास्त्र रचने का। बनाऊं शास्त्र, बनते तो नहीं राग से, बनते तो उसके कारण से, पर राग आया तुम्हें शास्त्र जई समय सार रचूं। धवल पुष्पदंत भूत बोली महामुनि जंगल में वसने वाला 2200 वर्ष पहले विकल्प आया, ताड़पत्र में लिख हो गया शास्त्र। तो कहते हैं वो राग आया, वो भी पुण्य बंध का कारण है। संवर निद्रा नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं। भाई दूसरा को मोक्ष मार्ग लगाने का तो विकल्प आया है, कोई बहिरा छोकरा में कहीं आया नहीं है। समझ में आया? बन सकते हैं ऐसा नहीं, तो बन तो पुस्तक के कारण से बन गया। ये मंदिर कोई बना सकते हैं ऐसा? मंदिर तो मंदिर कारण से बनते हैं। खबर की बात, वो परमाणु की खंड की अने भाव हुआ ने न बनना तो नहीं बने। भाव घना है कि मैं ऐसा बनाऊं तो घर मंदिर में नहीं बनते, नहीं देखा है? नहीं मिलते। ये वो तो उसके कारण से बनने तारे विकल्प को निमित्त कहने में आता है, पर है राग शोभ। समझ में? एम शास्त्र रचने का भाव, एक शास्त्र रचूं, एक भजन बनाऊं, तो भजन तो अक्षर का अनंत परमाणु का खंड अक्षर है, वो भी उसके कारण से बनते। अक्षर अक्षर आत्मा से भजन बनते ही नहीं। पण भजन बनेना का भाव है ने, वो राग है। इतना राग से भी सप्तम गुण स्थान नहीं होता है तो मोक्ष नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। समझाय छे काई? किंचित कर ही पाछा एम छे, शब्द कितला કર્યા और नहीं किंचित कार्य कर नहीं, किंचित कार्य कर ही नहीं, इतना तो जोड़ दिया। एक किला ज्ञान गोवा चैतन सदन भिन्न होकर राग से अंतर में लीन हुए बिना ज्ञाता ज्ञेय ने ज्ञान तृण की भी भेदता छोड़कर अभेद हुए बिना मोक्ष अथवा केवल ज्ञान होता। पद्म अवतारी देव कैसे ने ओ इस कोर्स में जैन मार्ग में भेदवाद उत्पन्न होता है। ध्यानी को भी अंदर में विकल्प ज्ञान से हटकर उत्पन्न हो जाता है। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन हूं। पर वेद से मोक्ष होगा कि नहीं, जैन शास्त्र में कौन जाने, ऐसा लिखा है उसमें। समझ में आया? विकल्प क्या करी है? सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और ज्ञान में गई थी एकाकार में आया। अरे मैं ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा भेद उठा तो मुनि कहते हैं, मुनि है आचार्य नहीं है, पद्म मोक्षधारी, ऐसा भेद विकल्प उठा, ऐसा उसको मोक्ष होगी कि नहीं कौन जानते हैं? अर्थात मोक्ष नहीं होगी। समझ में आया? कीधु ने सप्तम गुण स्थान का आत्मज्ञान अनुभव में स्थिर हुआ, उसको यहाँ आत्मज्ञान। आत्मज्ञान એટલે આત્મામાં એકતા હોની, उसमें भेद न रहा, विकल्प पूछा, वो यहाँ बात करता आत्मा की। समझ में आया?
એથી જરી અર્થ નીકળે ને ટોડર મળે ને ઘણે ઠેકાણે એવો એસા નીકળે आत्मज्ञान से समझ पर અહીંયા तो आत्मज्ञानी के सप्तम गुण स्वयं की एकता बताना है अमरचंद्र आचार्य चढ़ते 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 पहले सम्यक आज्ञम ज्ञान सम्यक क्या सम्यक दर्शन क्या सही सच्चा का वही पति गाथा में फिर कर नाम निक्षेप वाला कहे ऐसा है वो चढ़ते चढ़ते हैं ले गया है। तो आत्मज्ञान का अर्थ ही यहाँ सप्तम गुण स्थान है, एक ईला अनुभव में ठहरना। बस लग्न तो है, मुनि है, पर अंतर में ठहरे बिना उसको केवल ज्ञान धारा प्रकट होगी नहीं। केवल ज्ञान तो है नहीं, अभी सिद्धि कहते हैं ना, सिद्ध नहीं होता तो केवल ज्ञान तो है नहीं। इतनी बितनी बात क्या करते हैं, कोई पंडित ऐसा निकालते हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि अचकिन तो कुंदकुंदाचार भी विकल्प तोड़कर ऐसा सिद्ध हुआ है, तो वो हुआ है तो सिद्ध हुआ है आ काल में, पंचम काल में भी सिद्ध होता है। अरे सुन तो सही, तो उत्कृष्ट बात करते हैं। अपने में वो दशा सप्तम आता है, तो पीछे हटकर छठा आ जाता है। सप्तम रह सकते नहीं गौ बहुत काल, तो सप्तम आया बिना सिद्धि नहीं होती ऐसा निश्चय कराते हैं। समझ में आया? वो पंडित ऐसा है, बड़ा एक पंडित जो कुंदकुंदाचार्य क्या कहते हैं कि अभी सिद्धि नहीं होती है, आ रही ऐसे बंदे कर्म से न छूटता, सिद्ध नहीं होता, तो अपना आत्मा उसको बंदा नहीं, विकल्प छूट गया। लिखते वक्त क्या है, छूट समझ तो छूट, लिखते वक्त विकल्प है कि नहीं, तो उत्कृष्ट बात करते हैं। राग है, ताड़पत्र में शब्द पढ़ते हैं, राग है, राग ऊपर ऊपर लग जाए तो शुभ राग है। तो इतनी बात क्यों करे? राग पूते नाश करने की बात करते न, राग लखने का तो राग है। अरे सुन तो सही, तेरे वस्तु की स्थिति यथार्थ समझने में विरोध करना है तेरे, समझ में आया? विरोध कर लो। वो तो इतनी बात करते हैं, तो सत्य में क्यों रहते नहीं? क्यों ऐसा शास्त्र लिखने का राग आते हैं? क्यों राग करते हैं? बोले हम क्या उदी बोले, तो तुम तो सही करते है, कौन आता है? आया बिना रहे नहीं, पर अंतर में उसको छोड़कर स्थिर होना उसका वीर्य का काम है, ऐसा जोर देते हैं। उल्टा प्राणी हो तो वो तो इतनी बात करते हैं ना जी, शास्त्र का लिखने का तो राग चालते नहीं। अरे तने विनय करता आवड़तो નથી, તને વસ્તુની મર્યાદા ક્યાં કે છે ઉત્કૃષ્ટ વાત, એને તું એની પોતે આમ કરે ને પોતે આમ, અને બીજો આમ કે सिद्ध होता है वर्तमान में भी। कुंदकुंदाचार्य क्या ना पाड़ते कि वर्तमान नहीं सप्तम आता है तो न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता, पर उसमें रहने से छूटता है, सिद्ध होता है। अरे भगवान, कहीं तेरी कल्पना हो जीवनी स्वच्छंदता रोकी છે, અનાદિથી ક્યાં 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 ખલવાણો પડ્યો છે। ખલવાણો સમજते हैं, रुका पड़ा है, घड़ी जरिए नहीं। एक बाजू के एक चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। समय सार में से कहे सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष हो गया। आवेशन में कलश में मोक्ष है वो, उनको सही एक आत्मा का भान अनुभव में हो गया। वो दर्शन की प्रधानता में दर्शन का विषय द्रव्य है, तो द्रव्य तो मुक्त ही है, द्रव्य तो मुक्त ही है। ये अपेक्षा क्या मुक्त कह दिया? आई तो पर्याय का एक एक पर्याय का बात करते हैं। एक छठा गुणस्थान में विकल्प आया, मुक्ति नहीं के साथ, पर्याय में मुक्ति नहीं, वो तो द्रव्य की मुक्ति, द्रव्य छुटा है ऐसी प्रतीत ज्ञान में हो गए, अनुभव में मुक्त देगा। मुक्त एव एम शब्द कवच में मुक्ति ये 239 गाथा हुई, समझ में आया? હવે આજ્ઞમ જ્ઞાન
तत्वार्थ सिद्धांत संयत्व की युगपता के साथ आत्मज्ञान की युगपता को साधित करते हैं। तीनों है सत्य पाचा आत्मज्ञान नाम सप्तम गुणता में एकता होती है। आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत से स्त्रीक के साथ आत्मज्ञान के युगत तत्व को सिद्ध करते हैं। पंच समिति समितोति गुप्तो पचंदी संबुड़ो जिद कसायो दंसनान समंगो समनो तो संजदो भनिदो। टीका जी पुरुष अनेकांत केतन आयम ज्ञान के बहुत हैं। ये अनेकांत केतन अनेकांत का अर्थ बहुत हुआ था है। द्रव्य द्रव्य में है, द्रव्य गुण रूप नहीं, गुण गुण में है, गुण पर्याय रूप नहीं, पर्याय पर्याय रूप है। एक गुण गुण रूप है, दूसरा गुण रूप नहीं। राग राग रूप है, निर्मल पर्याय रूप नहीं, निर्मल पर्याय पर्याय रूप है, द्रव्य रूप नहीं। ऐसा छेद भेद करके अनेकांत कीर्तन ध्वजा अनेकांत ध्वजा लहरती है। आगम का ज्ञान में अनेकांत अनेक धर्म परस्पर विरोध ऐसा बताने वाला आगम, ऐसा जो आगम का ज्ञान के बहुत हैं। सकल पदार्थों के ज्ञाकार के साथ मिलित होता हुआ समझ में आया। सकल पदार्थों के ज्ञेयाकार सब जो ज्ञेय है उसकी साथ अपना ज्ञान में ज्ञेयाकार का ज्ञान आ गया, मिलित नाम सबन हो गया। पर ज्ञेय जितना है इतना सबका विशेषता अपना ज्ञान में आ गया। वो पहला शब्द आ गया, पहला शब्द पहला आ गया। विशद ज्ञान जिसका आकार है ए वो भगवान आत्मा सब ज्ञेयनो स्वरूप अपने ज्ञान में पी गया है, ज्ञान में आ गया है। ऐसा ज्ञेयाकार का अपना ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्मा का सिद्धांत, ऐसा आत्मा का सिद्धांत और अनुभव करता हुआ समझ में आया। ऐसा अनुभव करता हुआ आत्मा में ही नित निश्चल वृत्ति को हिस्सा हुआ। आत्मा में अंदर निच प्रणति को अंतर में स्वरूप में लीनता होने की भावना करते हुआ संयम के साधन बनाए हुए संयम नो निमित्त साधन ए शरीर पात्र संयम के व्यवहार साधन निमित्त साधन बनाए हुए शरीर पात्र को 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवृत्त करता हुआ अंतर में 5 समिति की प्रवृत्ति निश्चय अंतरंगनी बात है। ये बात नहीं भाई। पंच समिति से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवृत्ति करता हुआ अंतर में क्रिया समिति अपना पंथ में एकाकारता, भाषा समिति विकल्प नहीं, अपने में निर्मल प्रणति आदि ऐसा अंतर में शोधना पर्याय द्रव्य में से और निर्मल होना ऐसा 5 समिति उसे अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ आत्मा को उसमें प्रवर्तित करता हुआ अपना शुद्ध स्वभाव में पंच समिति से प्रवर्ता हुआ पंच समिति द्वारा अंतर में प्रवर्ता हुआ। क्रमशः पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा 5 इंद्रिय का अंतर निरोध हो गया, उसके लक्ष्य छोड़कर अंतर अतीन्द्रिय में हो गया, जिसके काय वचन मन का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है। समझ में आया। काय वचन मन इसका व्यापार विराम विराम हो गया है। ऐसा होकर चिद वृत्ति के लिए परिद्र में भ्रमण का निमित्त जो कषाय समूह
वह आत्मा के साथ अन्योन मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी क्या कहते हैं, जो चिद वृत्ति के लिए परद्र में भ्रमण जरी वृत्ति उठी है, परद्र में भ्रमण ओ ऐसा जो निमित्त जो कषाय समूह अंदर में है, वह आत्मा के साथ अन्योन मिलन के कारण जानी राग और आत्मा एक हो गया हो, ऐसा अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके पहला बताया कि ऐसा जाने एक क्षण में भेदा है ना। राग ने ज्ञान, जो समय में ज्ञान उठते हैं क्यों समय में राग उत्पन्न होता है, जो क्षेत्र से ज्ञान उत्पन्न उपयोग उठते हैं, जे अपना स्व क्षेत्र में ज्ञान उत्पन्न होते हैं वो समय में राग उत्पन्न होता है। काल एक, क्षेत्र एक, भाव भिन्न। समझ में आया? सब चरणान योग में ऐसी बात किया है। ओहो कुंद कुंदाचार्य की कुछ पद्धति कथन, देवान योग में तो कथन करे, पर चरणान योग जहाँ व्यवहार का विकल्प की बात करते थे उसमें आ डाल दिया। समझ में आया? चिद वृत्ति के लिए पर जो चिद की परंती में परद्रव्य में भ्रमण का निमित्त कषाय समूह पर से हुआ, ऐसा नहीं। अपने में राग आया, कषाय समूह अनेक प्रकार का विकल्प सुख का परद्रव्य पर लग जाते हैं, देव पर, गुरु पर, शास्त्रों पर विजय। वह आत्मा के साथ अन्योन मिलन के कारण जाने आत्मा ने राग एक है, काले क्षेत्र है एक है, ऐसा काले क्षेत्र एक है, भावे भिन्न है। राग का कण वो आश्रव है और स्वभाव सन्मुख की परिणति वो अनाश्रव है। आई क्यों भाई? एक समय की पर्याय में चार बोल। क्या समझ में आया? पर्याय एक, चारित्र गुण की एक पर्याय, एक पर्याय में चार बोल। मलिनता हो आश्रव बंध, भाव बंध ने आश्रव, निर्मलता हो संबंध है निद्रा। ओहो, सर्वज्ञ ने कहा ने वो समझ बदरा, ये नाथ आप एक समय में द्रव्य का उत्पाद तो इन्हें ध्रुव तीन बात किया, हमको ख्याल आ गया आप सर्वज्ञ है। समय एक ने त्रण सत आई, समय एक ने चार सत। आश्रव भी सत है, बंध भाव बंध भी सत है, एक पर्याय सत का चार सत। आ तो सर्वज्ञ सिवाय कोई कह सके, अने ज्ञानी सिवाय उसकी बात बह सके नहीं। समझ में आया? द्रव्य वस्तु है, गुण शक्ति है अनंत, पर्याय अनंत है, अनंत गुण की। उसमें एक चारित्र गुण की एक पर्याय, चारित्र गुण की एक पर्याय, पर्याय दो नहीं है, काल दो नहीं है, पर्याय दो नहीं, भाव चार, चार भाव। समझ में आया? जो स्वभाव तरफ की शुद्धता है वो संवर, पहला की अपेक्षा उसमें शुद्धि बढ़ी, वो निजरा, और उसमें नहीं था ऐसी पर्याय जरी निर्मल मलिन हुई आश्रव, वो रुक गए हैं, निमित्त का लक्ष्य कर रुक गए विकार में, उभा बने। एक पर्याय में चार। ओ समझाय છે કાંઈ? દ્રવ્યાન योग इसके भैया एक बात आवे कि मान बे आवे बीजी आवे झीणी, बीजी आवे तो त्रीजी। हाँ बात तो भैया अंतर की बात तो ऐसी है कोई कि ऐसे बाहर से पत्ता खाए नहीं, अत्यंत एक हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण, देखो स्वभाव भेद के कारण ये राग मलिन मलिन आकुलता, आकुलता का दो प्रकार का आश्रम बन, अने
स्वभाव शुद्ध चैतन्य मूर्ति, वो तरफ की झुकी पर्याय शुद्धि की वृद्धि, संवरने निद्रा। ऐसा स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके, राग ने भावबंध पर रूप कर निश्चित करके समझ में आया। भगवान आत्मा द्रव्य गुण है तो शुद्ध है, ऐसी अंतर प्रतीति अनुभव में हो गई। आगम ज्ञान भी स्वसंवेदन में यथार्थ हो गया। आगम ज्ञान एकलो बल नहीं, ये तो निमित्त की बात किया चरणान योग है। तो आगम बल की क्यों जन्म है अंदर, आगम बल की पण ये तो निमित्त की बात भाव ज्ञान है। एकला आगम ना लक्ष्य थયેલું એ જ્ઞાન નહીં સમજાય છે કાંઈ? આ તો ધર્મની પારાયણ है। ધર્મને સમજવા માટે વિવેક ઘણો જોઈએ। ऐसी कोई पोपाबाई નું રાજ નથી કે જટ મળી જાય। पोपाबाई ना राज कहते हैं ना, वो पोप लीला नहीं, पोप लीला है, रोम का पोप। ये तो अभी आया था, बड़ा पोप थी। रोज उसको क्या जापान में क्या कोट है, रोज मानसो बंधन करवा, बड़ी टोपी लगाते हैं। अंदर तो दरवाजे नहीं है ना मंदिर में, बाहर से कठोरा में उभा रहे, बस थोड़ी बार दक्षिण से आचार्य से पोप मुक्त, मोटी लांबी टोपियां। ओहो कहाँ मान रखा है धर्म। रोज मांस का गंज आखा देश में से पगी लगा तो अंदर रहना, मकान में तो जवाब दे नहीं कोई, बाहर कठोरे आवे थोड़ी बार। यहाँ धर्म खेला, धर्म खेला। धर्म कैसे होता है, कहां से होता है, द्रव्य क्या वस्तु क्या खबर नहीं मिलता। यहाँ कहते कि ऐसा नहीं है। यहाँ तो अंदर में महान प्रयत्न से यथार्थ का, स्वतंत्रता का, वास्तविकता जैसा पदार्थ है उसका उसको ज्ञान करना चाहिए। एक ज्ञान बिना अंतर्दृष्टि न सम्यक दर्शन कभी होता नहीं। तो कहते हैं ओहो सदमस की बात करते हैं कि केवल ज्ञान की सदमस की बात चलती है। और साक्षात तेरी अनंत शक्ति का भंडार भगवान कहते हैं को राग ने आत्मा की पर्याय जाने एक हो गई हो, ऐसे होते छते स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके, वो पर है नीचे तो क्रिया ही है पहले से, समझा रहे तो मारी नाखवाने में की बात है। नीचे तो किया है पहले नहीं, आगम ज्ञान ने सम्यक दर्शन में समझ में आया। पण शैली ये भी आचार नीचे ने पूर्ण रूप बतावे पास पर रूप से निश्चित करके कि मैं ज्ञान चैतन्य स्वभाव, ज्ञान धारा, स्वभाव धारा, शुद्ध धारा वो मेरा स्वभाव, और राग धारा मलिन भाव ये प्रभाव, ये पर अपनी पर्याय में राग वो पर અને अपनी पर्याय में स्वभाव सन्मुखता की शुद्धि हो स्व। शरीर ने वाणी तो क्या गई, शरीर पर ने आत्मा स्व ने तो क्या ही गई। समझ में आया। ज्ञान उपयोग में वो जानना, वो राग का जानन पर्याय, राग है ऐसी प्रतीत रूप पर्याय, वो शुद्ध है, स्वभाव है। और वह राग आया जाना का राग वो शुद्ध है, उसको पर रूप निश्चय करके पर रूप पर का तरफ का झुकाव, ऐसी लागणी को पर रूप निश्चित करके आत्मा से कुशल मल की भांति, देखो कुशल मल हो ने, कुशल मल मारे नहीं आम धोखा ने हाथ
પણ એ મર્દન કરી કરીને મારી નાખે. એના શરીરને એવું મર્દન કરે કે લોહી અટકી જાય, કંપી જાય લોહી. હોય ને મલ મલ, પણ કુશલ મલ હો. હા, એસી કઈ એક ઠેકાણે દાબે ને અમુક લોહી બંધ, રગ દબાવે ને અમુક દબાવે તો એકદમ બધું મસળી નાખે. હા, હારા મસળ ની જુદી વાત હો પાછી, આ તો મારી નાખવાની મસળ. અને હારા હોય છે હોશિયાર માણસ, એવી રીતે કરે ને કે લોહી ફૂર્તી થઈ જાય, વાળ છૂટા, એવા માણસ હોય છે. રૂપિયો 5, 2 રૂપિયા 1 કલાકના, 1 કલાકના 2, 5. અત્યારે મોંઘું મોંઘું હોય છે. 1 રૂપિયા પણ 1 કલાકમાં મસળે એવું કે સ્ફૂર્તિ થઈ જાય ને શરીરમાં. ઈ નહીં, આ તો મારી નાખે એવો મલ લેવો છે. समझ में आया? आत्मा से कुशल मल की भांति। अरे भगवान, तेरी शुद्धता ने तेरी शक्ति का आश्रय लिया तो कहते हैं कि वो राग जरी दिखते हैं कुशल मल ने अत्यंत मर्दन करके. ऐसा जो अंदर मर्दन, आ राग मर्दन करो एम से एम नहीं, राग में मर्दन करूं ऐसा है. तो व्यवहार का कथन करते हैं कि राग है ऐसा भिन्न तो नक्की किया है, स्वभाव तरफ झुकने से वो राग का मर्दन हो जाता है, राग का नाश हो जाता है. मर्दन में आ राग है लाओ मर्दन करूं, है राग जान्या वो स्वभाव सन्मुख में धारा अंदर वही तो राग को मर्दन करके नाश कर दिया. ऐसा कहने में બહુ કથન પદ્ધતિ એવી, અને એમાંથી સચને નિતારવું. નિતારવું ક્યાં કહેते हैं? नितारना कहते हैं निचोड़ करना. निचोड़ कहते हैं राग को कुशल मल की बात अत्यंत मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है. देखो हमें भाषा है, अक्रम એટલે એકદમ એમ પેલો થોડો પછી વધારે એમ નહીં, उत्पन्न हुआ है क्रम में, मारते हैं क्रम से. स्वभाव सन्मुख होकर राग पर ऐसा भान हुआ, एक साथ मारी नाखे राग ने. राग નું મૃત્યુ અર્થાત રાગની ઉત્પત્તિ ન થઈ, એને અક્રમે રાગને મારી નાખ્યો, મારી નાખ્યા. ऐसा कहने में अक्रम से उसे मार डालता है. उसे એટલે राग को, शुभ राग हो जेरी राग आया ने उसको मार डालते, वही करते हैं. वही करते हैं तो उत्पाद का तो बीजो समय में वही हो जाता है. महल्ला तरफ का वही किया तो वही तो जो समय राग आया उस समय तो वे होता नहीं, और जो दूसरे समय तो उसके कारण से वे हो जाता है. पर स्वभाव सन्मुख हुआ तो राग का उत्पन्न न हुआ, उसको मार डाला. ऐसा कहने में मृतक कलेवर कर दिया. जो समझाय છે કાંઈ? આ તો મોક્ષના માર્ગની ધારાની વાત ચાલે છે. समझ में आया? पर्युषण पर्व 10 लक्षणी महान पर्व है. 12 महीने में 3 बार आता है. और चिट्ठी एक रही गया. 12 माह में 3 बार 10 लक्षणी पर्व आता है. महा, चैतर, भादु. पर वो न तुम्हें नवरा न हो वाणिया. महा महीने में, चैतर महीने में तुम्हारे निवृत्ति न हो, धंधा धंधा धंधा. तो आ श्रावण महीना भादवा मास में वरसाद हो गया हो और थोड़ा निवृत्ति हो. केम कुंजभाई જો ને મારે કુંજભાઈ ત્યાં ધંધો હાલતો નથી હમણાં, અત્યારે હાલે ને બહુ ધંધો. ચાલો ત્યાં જઈએ થોડું. ત્યાં ધંધા હું ચોમાસામાં તો વરસાદ બહુ હોય, માલ ગાડા લઈને આવાય છે કે ગાડા હોય ને એવું ગધેડા ને એસા માલ લઈ જાય. ગાડા ના હાલે, ગાડા તો બનશે ખબર છે ને, બહુ ગાળા હોય તો ગધેડા લાવે. ગધા ને હે, હા ઊંટ લાવે.
એ વખતે હું થોડા સમજે ને માલ લઈ જાય ત્યારે બી બહુ માલ ન ચાલે ધંધા. હાલો ભાઈ હાચર છે એ નટું હાલો ક્યાંથી આવી. પણ આ ભાદરવામાં એમ થાય માં ને ચૈતરમાં થાય મોજ મહિના ચાલતી હોય. એટલે 10 लक्ष्मी पर्व 12 महीने में 3 बार आता है. तो बल्लभ जी हाँ ये नहीं वो यहाँ का अपने लेना है, चलते उसकी लेना है. ठीक है अपन उसका प्रश्न तो बराबर है. तुम्हें यहाँ तो लगाया अपन और 10 लक्ष्मी पर्व दो में ऐसा लागू नहीं पड़ते 7 वर्ष आदमी. वो तो हमारे क्या था नहीं, ये संप्रदाय में 3 बार 10 लक्ष्मी तो कोई था नहीं. आ बात थी तो उसने निकाला था. वो भी पंडित बने आप हमारी समझ में आया. निवृत्ति का दिन है ना वो सब प्रसाद दशा हो गया हो, धंधा पानी हो गया हो, धंधा पानी का पीछे शुरू दिवाली पीछे होगा तो चलो भाई उसके कारण से ये प्रमाण कथा विशेष रखी था 10 लक्ष्मी. वह पुरुष वास्तव में सकल परिद्रव्य से शून्य होने पर भी क्या कहते हैं ए अंतर स्वरूप चिदानंद की परिणति में लीन होते और परिद्रव्य से शून्य और राग से भी शून्य और राग को मार डाला राग से भी शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव से रहने वाला आत्म तत्व में नित निश्चल परिणति. आत्म तत्व का स्वभाव विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र है. क्या आत्मा तद्दन विशुद्ध 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 शब्द शुभ राग नहीं, विशुद्ध नाम विशेष शुद्ध. ऐसा दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप से रहने वाला आत्म तत्व. ये रहने वाला आत्म तत्व विशुद्ध दर्शा ने ज्ञाता स्वभाव से रहने वाला आत्म तत्व. आत्म तत्व कैसा है? विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव से रहने वाला है, राग से रहने वाला है, विकार से रहने वाला है, शरीर के रहने वाला. ऐसा है दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप से रहने वाले आत्म तत्व. એટલે સ્વદ્રવ્ય में परद्रव्य कहेंगे तो नहीं, इसलिए नीत निश्चल परिणति उत्पन्न होने से, नीत निश्चल परिणति वितराग परिणति उत्पन्न होने से अंदर में साक्षात संयति है. समझ में आया? संयति है, साक्षात संयत है. उसे ही आगम ज्ञान तत्वार संयत की युगपत्ता एनी सात आत्मज्ञान की युगपता 3 हो गया. उनकी साथ स्थिर आत्मज्ञान निर्विकल्प हो गया. आत्मज्ञान की युगपता सिद्ध होते अंतर में इतनी परिणति तो शुद्ध हुई है, उससे विशेष होकर आत्मज्ञान लीन हो गया. तो आगम ज्ञान तत्वार सदान संयत युगपत 3 અને आत्मज्ञान निषाद युगपत 2 होकर एक आकार अंदर हो गया है. वही मोक्ष का मार्ग का साक्षात अधिकारी. साक्षात अधिकारी का मोक्ष मार्ग की बात चलती है तो मोक्ष मार्ग इसको खरी कर कहने में आता है. समझ में आया? हमें बस ने 1 ताड़ी गाथा उससे दूसरी આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. 239 તથા 240 ગાથાનો સ્વાધ્યાય પૂરો થયો.